Yes, very good morning, boys and girls. I welcome you all to your session of secretarial practice. अगले सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है. We are starting with the provisions of secretarial practice, जहाँ पे हम issue of debentures chapter start किए हैं. We started with different provisions of the Companies Act 2013. Let's go ahead with the discussion. कल जो मैंने आपको बताए थे, there were the various regulations and guidelines, and also we saw the provisions of the Companies Act and the RBI rules and the SEBI regulations, which have to be followed for issue of debentures, right? Okay, settle down. The last set of discussion हमने किया था regulations governing the issue of debentures. The last set of discussion जो हमने complete किया था regulations regarding issue of debentures. मैंने आपको बताया कि debentures are one of the sources of borrowed capital. It is one of the sources of long term source of finance. Long term source of finance के साथ साथ ये एक borrowed capital है, which is redeemable or repayable capital. The reward which we get on debentures is nothing but the interest which is to be paid. Redeemable होने के नाते they have to be repaid within a particular time period. It is a long term source of finance, इसीलिए हम debentures को long term के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा yesterday जो discussion हमने शुरू किया था, that was regulations governing the issue of debentures. There are various rules and regulations which are governing the issue of debentures. The Companies Act 2013 gives or lays down the various rules and regulations regarding issue of debentures, which is given in section number 71. Section number 71 of the Companies Act 2013 contains the provisions for issue of debentures. Contains all the provisions for issue of debentures. Companies Rule 2014, Rule number 18 covers various provisions regarding issue of secured debentures. Secured debentures के बारे में जो कुछ भी नियम वगैरह दिए गए, that is given company rules, rule number 18. The SEBI regulations 2008, SEBI regulations 2009 and SEBI regulations 2015 consist the rules and regulations regarding issue of debentures of a listed company. एक listed company के अगर debentures अगर issue किए जाने हैं, which will be listed on a stock exchange, are given in the SEBI regulations 2008, 2009 and 2015. Last and finally we saw RBI guidelines. In case in a bank or a commercial bank, in a bank or a commercial bank, if it issues debentures, a bank or a commercial bank, if it issues debentures, they have to follow the guidelines which are given by the RBI. Even a commercial bank may issue debentures or debt securities. In that particular case, the rules and regulations they have to follow are nothing but the guidelines given by RBI. So let us continue our discussion ahead. Once again, very good morning all of you. A company can issue secured debentures as well as unsecured debentures. कंपनी जो है वो secured debentures के साथ साथ unsecured debentures को issue कर सकते हैं. एक कंपनी जो है secured debentures और unsecured debentures दोनों भी issue कर सकते हैं. Any company can issue a secured as well as an unsecured debentures. What are secured debentures and unsecured debentures? Secured debentures are those debentures which carry a charge over the assets of the company are called as secured debentures, right? And the assets which do not carry any charge over the assets of the company are called as unsecured debentures. AC बंद कर. Which do not carry a charge over the assets of the company are called as unsecured debentures. The debentures which carry a charge over the assets of the company are called as secured debentures. Charge over the assets of the company का मतलब क्या है? For the repayment of the debenture capital. For the repayment of the debenture capital. These assets can be utilized in case of non-payment of the debenture capital. अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है इन रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर कैपिटल, यहाँ 3 बेंच खाली फिर भी उतना पीछे जाके क्यों बैठना है? आगे के सर को सब चलो फटाफट, पचपच मत करो, तुम्हारे पचपच साइन करने को नहीं आया मैं, चलो और गेट आउट. A company can issue secured as well as unsecured debentures. Secured debentures वो होते हैं which carry a charge over the assets of the company. Assets के ऊपर जिन securities का charge होता है, debentures का charge होता है, they are called as secured debentures. They are called as secured debentures. The debentures which do not carry any charge over the assets of the company are called as unsecured debentures. They are called as
अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स आर नॉट अलाउड टू बी इश्यूड इन द इंडिया एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 ने बड़े साफ तरीके से कहा है कि अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हमारे इंडिया में इश्यू नहीं किए जा सकते, लेकिन इंडिया के अंदर जो भी डिबेंचर्स आज इश्यू किए जा रहे, दे आर ओनली सिक्योर्ड डिबेंचर्स, दे आर ओनली secured debentures, right? It can issue non-convertible debentures or debentures which would be converted fully or partly into equity shares, right? The companies can also issue convertible and non-convertible debentures. What is convertible and non-convertible debentures? Debentures which can be converted into equity share before the expiry of the time period are called as convertible debentures. What are non-convertible debentures? Debentures which cannot be converted into equity shares are called as non-convertible debentures. Normally, a company will always prefer to issue convertible debentures. Can you tell me the logic? Anybody raise your hand? Raise your hand who wish to answer. Normally, what we see, a company will always go for convertible debentures rather than non-convertible debentures. हाँ, वो borrowed capital को permanent capital करने का एक तरीका मिल जाता है. We get an idea of converting the borrowed capital into permanent capital. We get a chance to convert the borrowed capital into own capital. इसीलिए नॉन कन्वर्टिबल की जगह कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू करने में कंपनी जो है ज़्यादा फायदा है, क्योंकि जो बोरोड कैपिटल उसको रिपे करने की जरूरत नहीं होगी और जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट बोरोड कैपिटल विल टर्न इनटू इक्विटी कैपिटल, जिसको रिपे करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी. ऑल द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल दैट दे हैव टू बी रिपेड. सारे डिबेंचर्स जो है वो रिडीमेबल है, दे आर रिडीमेबल दैट इज टू बी रिपेड. कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स टू इट्स मेंबर और मेक पब्लिक ऑफर और ऑफर थ्रू इट्स प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट. कंपनी जो है डिबेंचर्स जो है पब्लिक ऑफर के द्वारा भी इशू कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा भी इशू कर सकती है. कंपनी कैन ऑल्सो लिस्ट डिबेंचर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे लिस्ट करके स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी डिबेंचर्स बेचे जा सकते हैं. तुम्हारा क्वेश्चन था कि कंपनी के जो डिबेंचर्स कहाँ में, तो स्टॉक एक्सचेंज पर अगर आप सर्च करो, यू विल आल्सो गेट डिबेंचर्स टू बाय ऑनलाइन आल्सो, राइट. The board of directors of the company have the authority to issue debentures. Now understand the point. Please underline. Who is the authority? The board of directors. The board of directors have the authority. The board of directors have the authority to issue the debentures. किसके पास authority दे रखी है? किसके पास authority दे रखी है? Board of directors. The board of directors have the authority to issue debentures. The board of directors have the authority to issue debentures. However, the board can use their borrowing powers only to the limit permitted by the articles of association. Only to limit permitted by articles of association. Board of directors को powers दिए जाते हैं, right? Board of directors को डे टू डे मैनेजमेंट करने के लिए powers कहाँ से मिलते हैं? MOA से, AOA से, AOA से, right? AOA से board of directors को powers मिलते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को AOA से पावर्स मिलते हैं, राइट. नाउ दिस पावर्स कैन बी एक्सरसाइज एज पर गिवन इन द AOA. लेट्स फॉर एग्जांपल से कंपनी है ABCD प्राइवेट लिमिटेड, उसकी AOA के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 1 करोड़ तक का बोरोइंग या बोरोड कैपिटल रेज करने का पावर AOA ने दिया है. तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने वैल्यू के डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं? 1 करोड़ रुपये. क्या 1 करोड़ से ज्यादा के डिबेंचर्स इशू किए जा सकते हैं? नहीं. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 2 करोड़ के डिबेंचर्स इशू करने हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? They have to pass a special resolution in the annual general meeting seeking the permission of the members to raise the borrowing power given in the articles of association, alter that article which is given in the articles of association, insert a new article stating that the borrowing power of the board of directors is now 2 crores. जैसे ही आर्टिकल अल्टर होगा, अल्टर होने के बाद जब बोरिंग पावर उनकी बढ़ाई जाएगी, बोरिंग पावर बढ़ाने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्दर लिमिट पे जो है बोरिंग कर सकते हैं. जब तक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का अल्टरेशन नहीं होता, बोरिंग पावर का जो आर्टिकल है उसका जब तक अल्टरेशन नहीं होता, तब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उतना ही बोरो कर सकते हैं जितने की लिमिट उन्हें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दी गई है. अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिमिट अगर 1 करोड़ की है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने पावर तक बोरो कर सकते हैं? 1 करोड़. अगर 2 करोड़ की बोरिंग करनी है तो मेंबर्स का मेंबर्स का एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन लेना होगा. स्पेशल रेजोल्यूशन लेकर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बोरिंग पावर्स को अल्टर करना पड़ेगा. अल्टर होने के बाद फिर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 2 करोड़ तक की बोरिंग कर सकते हैं. समझ में आ रही है बात? इन केस द बोर्ड वांट्स टू इंक्रीज द बोरिंग पावर, यहां दिया है देखो, दे नीड टू गेट द अप्रूवल, दे नीड टू गेट द approval of the shareholders in general meeting by passing a special resolution, by passing a special resolution. Now provision for the issue of debentures
हमें 3 प्रोविजंस देखने हैं, प्रोविजंस विच आर गिवन इन सेक्शन नंबर 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, provisions which are given in the company's rule 2014, and what are the provisions that are given by the SEBI regulations, SEBI regulation 2008, SEBI regulation 2009 and SEBI regulation 2015. SEBI के regulations में क्या rules and regulations दिए गए हैं, कंपनीज रूल्स 2014 में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोविजंस दिए गए हैं, और कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 71 में क्या क्या चीजें दी गई है, उन सभी चीजों को डिस्कस करना है. टुडे लेट्स कंप्लीट द डिस्कशन ऑन व्हाट आर गिवन कंडीशंस और प्रोविजंस इन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 71, which is the section which states the provisions regarding the issue of debentures as per the Companies Act 2013. Section number 71. Section number 71 states the provisions. Section number 71 states the provisions regarding issue of debentures. Section number 71 में Companies Act 2013 के सारे provisions जो है वो दिए गए हैं, right? जिसके अंदर सारे provisions for issue of debentures के बारे में जानकारी दी गई है. Following are some of the provisions of the Companies Act which a company has to comply with while issuing the debentures. Right? Companies Act 2013 में section number 71 में बहुत से provisions दिए गए हैं. Right? Provisions कितने हैं सारे? 9 हैं. Right? These 9 provisions have to be followed by each and every company as per the section 71 of the Companies Act 2013 to ensure that they issue debentures. कोई भी कंपनी जो कंपनी के डिबेंचर्स इशू कर रही है, इशू करने से पहले उन्हें सेक्शन नंबर 17 की ये सारे प्रोविजंस को फॉलो करना होगा. अगर कंपनी सारे ये प्रोविजंस फॉलो करती है, कंपनी अगर सारे ये प्रोविजंस फॉलो करते हैं, तभी जाकर कंपनी जो है इज ऑथोराइज्ड टू इशू द डिबेंचर्स. राइट? नाउ फॉलोइंग आर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट व्हिच द कंपनी हैज टू कंप्लाई विद व्हाइल इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, नो वोटिंग राइट्स. प्रोविजन क्या है समझाऊंगा, और प्रोविजन होने की वजह क्या है ये भी समझाऊंगा. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, नो वोटिंग राइट्स. वोटिंग राइट नहीं है. हमारे इंडिया में जो डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं, आर दे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड? सिक्योर्ड, कंपल्सरीली सिक्योर्ड. मैंने ऑलरेडी डिबेंचर्स हैव अ चार्ज ओवर द असेट्स ऑफ द कंपनी. डिबेंचर्स हैव अ चार्ज ओवर द असेट्स ऑफ द कंपनी. हाँ या ना? ऑलरेडी उनका चार्ज है असेट्स के ऊपर. यानी कल को उनके पैसों को धोखा है क्या? नहीं. चाहे पूरी कंपनी भी डूब गई, उनके पैसों को धोखा नहीं है, क्योंकि जो असेट के ऊपर उनका चार्ज है वो असेट बेचकर सिर्फ उनके ही कैपिटल का रीपेमेंट होगा. यानी उनके कैपिटल को कहीं भी धोखा है, रिस्क है क्या? नहीं है. प्लस कंपनी अगर प्रॉफिट में हो, नुकसान में हो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? उन्हें इंटरेस्ट भी कंपलसरी दिया जाता है. राइट? इफ यू रिमेंबर डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड इज फिक्स्ड, बट पेमेंट ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड इज कंपलसरी फॉर द कंपनी ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट. In case of loss, is it compulsory for the company to make preference dividend payment? The answer is no. But in case of interest on debentures, is it compulsory to pay debentures interest? Yes. With respect to the fact whether the company is running into profit or whether the company is into loss. चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो, चाहे कंपनी नुकसान में हो, फर्क नहीं पड़ता. कंपनी हैज टू कंपल्सरीली पे इंटरेस्ट. राइट? उन्हें कंपल्सरी इंटरेस्ट मिलता है. दे हैव चार्ज ओवर द असेट्स ऑफ द कंपनी. उनके पैसे डूबने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि सिक्योर्ड डिबेंचर्स है. आर दे कैरिंग एनी रिस्क? आर दे कैरिंग एनी रिस्क? क्या उनके पास कोई रिस्क है जिसके बतौर उन्हें वोटिंग राइट देने की जरूरत है हमें? द आंसर इज नो. द आंसर इज नो. द आंसर इज नो. उनके पास कोई रिस्क नहीं है. दे आर नॉट गिवन एनी रिस्क. दे आर वेरी सेफ. उनका पैसा काफी सेफ है. सिक्योर्ड डिबेंचर्स है उनके पास. उनके पास सिक्योर्ड डिबेंचर्स है. राइट? सिक्योर्ड डिबेंचर्स होने के नाते चार्ज है असेट्स के ऊपर. व्हेन देयर इज चार्ज ओवर द असेट्स ऑफ द कंपनी, डू यू रियली थिंक दे हैव टू बॉदर और वरी अबाउट एनीथिंग? द आंसर इज नो. डू यू रियली थिंक दे हैव टू बॉदर एंड वरी अबाउट एनीथिंग? द आंसर इज नो. इसीलिए जब उन्हें कोई चीज का धोखा नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, तो उन्हें कंपनी के वोटिंग राइट्स में कोई अधिकार देने का कोई संबंध ही नहीं आता. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट? इसीलिए उन्हें कोई वोटिंग राइट देने का अधिकार नहीं. इसीलिए प्रोविजन क्या कहता है? नो वोटिंग राइट्स. दैट मीन्स व्हेनेवर डिबेंचर्स विल बी इश्यूड, they will be issued without any voting right. Voting rights are given only to the equity shareholders, not even to the preference shareholders. Voting rights to the preference shareholders are limited only to the matters which concern them as being the preference shareholder. Other than that, they don't have any voting right. Who has the voting right? The ultimate risk taker, that is the equity shareholder whose capital is permanent source of capital, only has voting rights. इनका तो कोई रिस्क ही नहीं है. They have a charge over the assets of the company. असेट्स का चार्ज है उनका, प्लस उसके साथ साथ इंटरेस्ट उन्हें कंपलसरी मिलता है. उनके रीपेमेंट को भी कोई धोखा नहीं है, पैसा भी उनको मिलना है, रिडीमेबल कैपिटल है. तो ये सब वजहों की वजह से उन्हें कोई वोटिंग राइट नहीं दिया जाता. एम आई क्लियर?
So do debentures carry any voting right? The answer is no. They do not carry any voting right. A company cannot issue debentures with voting rights. Debenture holders are creditors of the company. Who are they? Creditors of the company. डिवेंचर यानी पैसे देने हमें, उनसे पैसे लिए तो उन्हें पैसे देना है, जिसे पैसे देना होता है वो कौन है? डेटर है, क्रेडिटर? द आंसर इज क्रेडिटर of the company, so they do not have any voting rights except in the matters affecting them. जो चीज़ें उन्हें परेशान करती है, जैसे नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कोई साल कंपनी ने इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया, डू यू थिंक इट इज वन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर विच कंसर्न देम एज अ डिबेंचर होल्डर? द आंसर इज यस. कंपनी के प्रॉफिट होने के बावजूद भी डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट पे नहीं किया गया, तो जब कभी भी एनुअल जनरल मीटिंग में डिबेंचर इंटरेस्ट का कोई पॉइंट होगा या रेजोल्यूशन होगा, don't you think this debenture holder will be given a right to talk on that particular matter? The answer is yes. If any matter concerns to them as a debenture holder, then they have the voting rights. Are we okay and fine? Are we fine? Next, types of debentures. अगला point क्या है? Types of debentures. Types of debentures क्या कहते हैं? There are various types of debentures. What are the different types of debentures? Secured, unsecured. फिर उसके बाद कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रजिस्टर्ड बियरर, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल. अभी ओके, राइट? These are the different 8 types of debentures. Every company can issue different types of debentures, but in India, Companies Act 2013 has clearly stated a company can issue all types of debentures, but it cannot issue unsecured debentures. Right? A company can issue secured or unsecured debentures and fully or partly convertible debentures, non convertible debentures. यहाँ पे दिया है unsecured, लेकिन ऑलरेडी मैंने जब सोर्स ऑफ फाइनेंस वहां हमने पॉइंट देखा था, unsecured debentures are not allowed to be issued by the Companies Act 2013. To issue convertible debentures, a special resolution has to be passed in the general meeting. All the debentures are redeemable in nature. इन सभी टाइप्स में जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है, इन सभी टाइप में जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है वो इशू करने के लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. इन सभी टाइप में जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है उन्हें इशू करने से पहले एनुअल जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. कोई लॉजिक समझा सकता है मुझे? व्हाट कुड बी द लॉजिक? व्हाट रियली कुड बी द लॉजिक फॉर इशूइंग फॉर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द एनुअल जनरल मीटिंग फॉर इशू ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स? कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू करने के लिए एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना जरूरी है. क्या लॉजिक है? दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द ओन कैपिटल. भाई वो क्रेडिटर है, डिबेंचर होल्डर कौन है? क्रेडिटर है. क्रेडिटर को तुम ओनर की गादी दे रहे हो, उसकी गादी पे उसको बैठाने की उसकी तैयारी चाहिए ना. जो ओनर है, जो ऑलरेडी उस गादी पे बैठा है, सब खेल किसका है? कुर्सी का खेल है. हो जेठानी, सब खेल किसका है? कुर्सी का खेल है. अब एक कुर्सी मेरी है, ये कंपनी के क्रेडिटर है, मेरी कुर्सी पे मैं इनको जगह दूं, उसके लिए मेरी मर्जी तो पूछनी पड़ेगी ना. मेरी मर्जी पूछनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? शी इज अ क्रेडिटर. इफ आई हैव टू गिव माय सीट, इफ आई हैव टू शेयर माय सीट, माय परमिशन हैज टू बी टेकन. मैं ओनर हूं, मेरी परमिशन तो लगेगी ना. मैं उसके साथ मेरी सीट शेयर करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता हूं, वो पूछना तो पड़ेगा. बिकॉज अ क्रेडिटर विल नाउ बी द ओनर आफ्टर कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. इफ वी कन्वर्ट द डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स, वो क्रेडिटर ओनर बन जाएगा, और ओनर बनने के बाद वोटिंग पावर एक्सरसाइज करेगा. जब तक डिबेंचर है तब तक नो वोटिंग पावर, लेकिन जब वो डिबेंचर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं, दे विल अगेन हैव नॉर्मल वोटिंग पावर दैट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स. और उन्हें नॉर्मल वोटिंग पावर देने हैं नहीं देने हैं, इसकी परमिशन तो आपको लेनी पड़ेगी. इसीलिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है फॉर इश्यू ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. बाकी किसी भी इश्यू के लिए आपको एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स की परमिशन की जरूरत नहीं होती. Am I okay and clear? Am I okay and clear? Right? What is the next point we have? Payment of interest and redemption. डिबेंचर्स जो है हमारे यहाँ कंपलसरी क्या है? रिडीमेबल. आर डिबेंचर्स परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल? नो. एंड इंटरेस्ट, is interest on debentures to be compulsory paid? The answer is yes. Interest on debentures have to be compulsorily be paid irrespective of the fact whether the company is making profit or whether the company is into loss. चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो, चाहे कंपनी लॉस में हो, कंपनी को कंपलसरी जो है इंटरेस्ट का पेमेंट करना जरूरी है. इसलिए पॉइंट क्या है? shall redeem the debentures and pay interest as per the terms and conditions of the issue. So terms and conditions of issue of debentures जो है उस terms of conditions के हिसाब से रिडीम करना होगा. Let's say कंपनी issues debentures for 5 years, उसका रिडेम्पशन कितने साल में होगा?
5 साल के बाद होगा। कंपनी ने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिबेंचर 7 साल के लिए इशू किए, 10 साल के लिए इशू किए। अगर 10 साल के लिए इशू किए तो उसका रीपेमेंट कब होगा? 10 साल के बाद। 7 साल के लिए इशू किए तो 7 साल के बाद। जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस है, जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस है, उन टर्म्स और कंडीशंस के मुताबिक उसका रीपेमेंट या रिडम्पशन होता है। और जो टर्म्स एंड कंडीशंस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होगा, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक इंटरेस्ट का पेमेंट होना है। ओके एंड फाइन। फाइन क्या है? चलो नेक्स्ट पॉइंट, डिबेंचर सर्टिफिकेट। अगला पॉइंट क्या है? डिबेंचर सर्टिफिकेट। A company has to issue debenture certificate to the debenture holder within 6 months of the allotment of the debentures. Company has to issue debenture certificate to the debenture holder within 6 months of allotment of debentures. Issue of shares. The company has to issue share certificate within a period of 2 months from the completion of date of allotment. Now here time period is given is more. A company has to issue debenture certificate within a period of 6 months from the date of allotment of debentures. What is debenture certificate? Debenture certificate is acknowledgement of debt. It's an acknowledgement of debt or an amount which is owed by the company to the holder of the debenture share certificate, which debenture certificate, which is nothing but who is nothing but called as the debenture holder. Right? Debenture certificate is an acknowledgement. Acknowledgement of what? कि कंपनी इतना पैसा इस डिबेंचर होल्डर को ओ करती है, they have to pay this amount with the particular interest which is mentioned in the debenture certificate. Issue of share certificate कितना टाइम पीरियड है? 2 months from the date of completion of allotment of shares. debentures का कितना है? 6 months from the date of completion of allotment of debentures. Next, creation of debenture redemption reserve. बोनस शेयर्स के वक्त मैंने बताया था डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के बारे में। रिडम्पशन रिजर्व बताया था, नहीं बताया था? बताया था डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। चलो नहीं ध्यान में तो ध्यान दीजिए। कंपनी ने 10 लाख रुपए के शेयर्स इशू किए हैं। कंपनी ने डिबेंचर्स इशू, कंपनी कितने लाख के डिबेंचर्स इशू किए हैं? 10 लाख के। नाउ दिस 10 लाख रुपीज डिबेंचर्स आर इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 5 years. So when are these debentures to be repaid? After the expiry period of 5 साल की एक्सपायरी टाइम पीरियड के बाद इन डिबेंचर्स को रीपे करना जरूरी है। सो कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि सफिशिएंट फंड हो एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड फॉर द रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर्स। इसीलिए हर साल कंपनी को पूरी रकम में से कुछ अमाउंट जो है बाजू में रखना होगा ताकि रीपेमेंट के लिए कंपनी के बाद इनसफिशिएंट फंड्स ना हो। कंपनी को 10 साल के बाद कितने, 5 साल के बाद कितने देने हैं? 10 लाख। इसलिए हर साल कंपनी को 2 लाख रुपए निकालना चाहिए, ऐसा कंपनीज एक्ट कहता है। हर साल 2-2 लाख रुपए बाजू में निकालते गए तो एट एंड ऑफ द 5 years हाउ मच मनी दे विल हैव? 10 lakh rupees. So out of this 10 lakh rupees, do you really think they can easily repay the amount which is borrowed on debentures? The answer is yes. ये जो पैसा हर साल बाजू में निकाला जाता है which is to be utilized only and only and only and only for the repayment of the debenture capital is called as debenture redemption reserve. क्या कहा जाता है इसे? debenture redemption reserve. क्या कहा जाता है इसे? debenture redemption reserve. Out of the debenture capital every year a certain amount is kept aside, and that certain amount which is kept aside is to be utilized only and only for repayment of the debenture capital. Is to be utilized only for the repayment of the capital. हाँ या ना? Right? Now this amount which is kept aside, which is to be utilized only for the repayment of the capital, is called as debenture redemption reserve. Are we okay and fine? Are we okay and fine? तो ये जो पैसा बाजू में दूसरे अकाउंट में रखा जाता है जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. Are we okay and fine? फाइन क्या? Company has to create debenture redemption reserve account out of the profits available for the payment of the dividend. जो प्रॉफिट है जिसमें से पेमेंट ऑफ डिविडेंड किया जाएगा उसमें से हर साल थोड़ा पैसा बाजू में निकालना पड़ेगा. This money can be used only for redemption of debentures. देखो यहां दिया है, it is to be used only for redemption of debentures as per company's amended rule 2019 sorry. Now there is an amendment which is given in company's rule 2019 which states
एक लिस्टेड कंपनी को डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व मेंटेन करना जरूरी नहीं है। अगर एक अनलिस्टेड कंपनी है तो उसे अपने प्रॉफिट में से हर साल कुछ रकम रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स के लिए बाजू में निकालकर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर एक लिस्टेड कंपनी है तो उन्हें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व मेंटेन करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह अमेंडमेंट है 2019 का। दिस इज अ रिसेंट अमेंडमेंट विच इज गिवन इन द ईयर 2019, जिसके मुताबिक 2019 के बाद अब जितने भी लिस्टेड कंपनी है, कौन सी कंपनियां? लिस्टेड कंपनीज डू नॉट हैव टू मेंटेन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। लेकिन एक अनलिस्टेड कंपनी के लिए आज भी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में क्या किया जाता है? कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा बतौर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अलग अकाउंट में जमा किया जाता है, और हर साल थोड़ा पैसा ये जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में जमा किया जाता है, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली एंड ओनली फॉर द रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर कैपिटल। क्यों किया जा रहा है ये? ताकि जब रिडम्पशन का टाइम आए, एक्सपायरी जब आए, जब रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर कैपिटल करना पड़े, उस वक्त कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स हो, उस वक्त कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स हो। नहीं तो पता चला कंपनी ने बाजू में कुछ रखा ही नहीं, 5 साल के बाद एक साथ 10 लाख रुपए देने की बारी और कंपनी के पास पैसे नहीं है, देयर इज लैक ऑफ सफिशिएंट फंड्स, इन दैट केस द कंपनी विल बी इन प्रॉब्लम्स, राइट। कल को कंपनी को फंड्स के प्रॉब्लम्स ना हो, इनसफिशिएंट फंड्स का प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हर साल प्रॉफिट में से थोड़ा पैसा डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहा जाता है। और ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है, इट इज टू बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल। Now MCA has removed debenture redemption requirement for listed companies, NBFCs, housing and banking finance companies। इन सभी कंपनियों के लिए NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, लिस्टेड कंपनी, इन सभी कंपनियों के लिए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज, ससुर जी याद है? ससुर जी याद है क्या? राइट। कंपनी और शेयर्स में एक कंपनी है और शेयर होल्डर है, सीधा सीधा बात है, राइट। मियाँ बीवी डायरेक्ट है, लेकिन काजी कहां पर है? डिबेंचर्स में आए। इश्यू ऑफ शेयर्स, यहां मियाँ है और बीवी है, डायरेक्ट 1 to 1 सारा एक्सचेंजिंग होगा, राइट। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पे एक मध्यस्थी है। मियाँ बीवी के बीच में कौन है? ससुर जी है, जो दोनों को बांधे रखता है या ना? दोनों को बांधे रखता है। मियाँ और बीवी को दोनों बांधे रखने का काम कौन करते हैं? ससुर जी करते हैं। ससुर जी इज द पर्सन हु इज गोइंग टू इंश्योर कि दोनों में आपसी सहमति बनी रहे। तो ससुर जी का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम डिबेंचर्स की बात करते हैं। जब हमने चेंज किया था, मियाँ मतलब कौन है? कंपनी, बीवी मतलब कौन है यहाँ पे? डिबेंचर होल्डर, और ससुर जी कौन है? जो मध्यस्थी कर रहे हैं, वो है डिबेंचर ट्रस्टी। नई नवेली दुल्हन जब घर आती है तो घर आने के बाद उसे किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, नए माहौल में वो काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो, ये इंश्योर करने का काम ससुर जी करते हैं। ठीक उसी हिसाब से डिबेंचर होल्डर अपना पैसा दे रहा है तो पैसे को कोई धोखा ना हो, कंपनी जैसे बोले वैसे चले, जैसे बोला कि इंटरेस्ट देंगे तो देंगे, जैसे रिपेमेंट करने का बोला तो वैसे करेंगे। ये सब चीज़ें इंश्योर करने का काम कौन कर रहे हैं? तो ससुर जी। अब ससुर जी कौन है हमारे एग्जाम्पल में? हमारे एग्जाम्पल में ससुर जी कौन है? डिबेंचर ट्रस्टी। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था डिबेंचर ट्रस्टी कौन अपॉइंट करता है? The company appoints the debenture trustee. Undoubtedly, company appoints the debenture trustee. लेकिन डिबेंचर ट्रस्टी किसके इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं? फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। ससुर जी पिताजी तो दूल्हे के हैं, ससुर जी पिताजी तो दूल्हे के हैं, लेकिन किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं? बहू रानी का। बहू रानी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हाँ या ना? सो फोकस क्या कहता है? फोकस ऑन ससुर जी। दूल्हे राजा जो है वो ससुर जी के बेटे हैं, लेकिन ससुर जी किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं? घर में आने वाले नई नवेली दुल्हन का या बेटे का? बड़े बेस नई नवेली दुल्हन बेचारी लड़की जो बाबुल की दुआई लेती आती है घर में, और नए नए घर में नए नए माहौल में एडजस्ट होने की कोशिश करती है, तो ऐसे हमारे दुल्हन रानी का ध्यान रखने का काम ससुर जी करते हैं। ही इज फादर ऑफ दूल्हा बट इज प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ बहू रानी। ठीक उस हिसाब से डिबेंचर ट्रस्टी है। डिबेंचर ट्रस्टी is appointed by the company, but even if after appointed by the company he works for the interest of the debenture holders, where he ensures whatever the terms and conditions of the debenture
agreement is done between the company and the debenture holder are exercised and worked out as is said. जैसे बताया था वैसे ही सब चीजें हो रही है. ये सब चीजें देखने करने की और इंश्योर करने का काम कौन करता है? डिबेंचर ट्रस्टी. डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट कौन करता है? कंपनी. वो किसके इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं? डिबेंचर होल्डर के. द डिबेंचर ट्रस्टी इज अपॉइंटेड बाय द कंपनी एज पर द डिबेंचर ट्रस्ट डीड. किसके मुताबिक अपॉइंट किए जाते हैं? डिबेंचर ट्रस्ट डीड. डिबेंचर ट्रस्ट डीड के मुताबिक डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट होता है. जो कंपनियों में डिबेंचर्स की संख्या 500 से ज्यादा है, क्या बोल रहा हूं मैं? इन कंपनी जहां पर डिबेंचर होल्डर्स की संख्या 500 से ज्यादा है, कंपनी जहां पर डिबेंचर होल्डर्स की संख्या 500 से ज्यादा है, सिर्फ उन्हीं कंपनियों को डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट करना जरूरी है. जहां पर डिबेंचर होल्डर की संख्या, द नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर, if it is more than 500, if it is more than 500, then in that case the company is required to appoint debenture trustee. अगर डिबेंचर होल्डर की संख्या 500 से कम है, are those companies liable to appoint debenture trustee? The answer is no. Debenture trustees have to be appointed by only companies having debenture holders more than 500. Okay, and that debenture holder is appointed by the debenture trustee is appointed by the company as per an agreement which is called as debenture trust deed. और इस debenture trust deed में जिस टर्म्स और कंडीशंस पे कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है वही सारे टर्म्स और कंडीशंस दिए जाते हैं. Secured debentures create a charge over the assets of the company. Let's say कंपनी में 5000 डिबेंचर होल्डर है और 1 करोड़ के डिबेंचर्स इशू किए गए. अब 1 करोड़ के एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करना है, लेकिन 1000 लोग मिलके 5000 लोग मिलके 1 करोड़ रुपए दिए. कैन वी क्रिएट चार्ज ऑन एवरी सिंगल डिबेंचर? द आंसर इज नो. इसीलिए मैंने आपको बताया था, अगर आप याद है तो, whatever charge is created on the assets of the company in case of secured debentures, that charge over the assets of the company is created in the name of debenture trustee. It is created in the name of debenture trustee. डिबेंचर ट्रस्टी के नाम पे वो चार्ज क्रिएट किया जाता है. किसके नाम पे चार्ज क्रिएट किया जाएगा? डिबेंचर ट्रस्टी. डिबेंचर ट्रस्टी के नाम पे वो चार्ज क्रिएट किया जाता है. Am I okay and clear? Am I okay and clear? डिबेंचर ट्रस्टी के नाम पे चार्ज क्रिएट किया जाता है. So when the charge is created in the name of debenture trustee, the debenture trustee will use that charge in case of default by the company. कल को कंपनी पैसा देने में डिफॉल्ट करती है तो अपने चार्ज का अधिकार इस्तेमाल करके कंपनी के एसेट को बेचकर डिबेंचर होल्डर के पैसे देने का काम करती है, क्योंकि डिबेंचर ट्रस्टी भले ही कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया गया हो, इज वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर एंड नॉट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. Am I okay and clear? राइट, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? कंपनी, और हाँ, कंपनी जब पब्लिक इशू करती है डिबेंचर्स का तो उन्हें प्रोस्पेक्टस ही इशू करना पड़ता है. जैसे इशू ऑफ शेयर्स के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, डिबेंचर्स इशू के लिए भी प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है. और जब प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, इशू करने से पहले उस प्रोस्पेक्टस में डिबेंचर ट्रस्टी का नाम जो है आना चाहिए कंपलसरी. तो जो डिबेंचर ट्रस्टी रहेंगे उन्हें पता होना चाहिए कि उनका डिबेंचर ट्रस्टी कौन है. राइट, अ कंपनी इश्यूज प्रोस्पेक्टस एंड इनवाइट्स more than 500 people to appoint one or more debenture trustees. Debenture trustees protect the interest of the debenture holders. Company has to appoint debenture trustee by entering into contract with them, which is called as debenture trust deed. Are we okay and clear? Are we okay and clear? Right? Next, debenture trustees can approach NCLT, National Company लॉ ट्रिब्यूनल. एनसीएलटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. जैसे हमारे यहाँ कोर्ट होती है, लोकल कोर्ट, राइट. अब हमारे परभनी की कोर्ट है, राइट. फिर इसके आगे हमारे पास हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के आगे सुप्रीम कोर्ट है, राइट. सो डे टू डे जो चिलर चालर मैटर होते हैं, क्रिमिनल मैटर्स वगैरह होते हैं, ये कहाँ एड्रेस किए जाते हैं? प्राइमरी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे. जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है प्राइमरी लेवल पर, यहाँ पर वो मैटर हैंडल किए जाते हैं. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस where the primary matters of company or joint stock company can be addressed. Primary matters of a company or a joint stock company or related to joint stock company
हैव टू बी सीन बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। उसका वर्क सिस्टम और जस्टिस सिस्टम अलग है। हमारे यहाँ नॉर्मल क्राइम के लिए क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कंपनी मैटर्स के लिए ऐसा नहीं है। कंपनी मैटर्स के लिए एनसीएलटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ओनली देर इज चेंज एट द प्राइमरी लेवल ऑफ जस्टिस। Only there is change in the primary level of justice. We do not go approach for the district court, but will be approaching NCLT. Are we okay? Right? So, मान लो कंपनी ने कुछ घोटाला किया है, ना तो कंपनी इज नॉट मेकिंग रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल एंड द कंपनी इज नॉट पेइंग इंटरेस्ट। ऐसे केस में डिबेंचर होल्डर के ट्रस्ट में, उनके हित में, उनके इंटरेस्ट में काम करने की जिम्मेदारी किसकी है? डिबेंचर ट्रस्टी की। सो डिबेंचर ट्रस्टी कंपनी को बहुत इन्फॉर्म कर रहा है, इंटीमेट करना है, वार्निंग दे रहा है, लेकिन कंपनी जो है डिबेंचर ट्रस्टी के सुनने को तैयार नहीं है। दे आर नॉट रेडी टू लिसन। तो ऐसे केस में एक कदम आगे बढ़कर डिबेंचर ट्रस्टी एनसीएलटी को अप्रोच करता है और उन्हें कंप्लेन करता है कि मैं इस कंपनी का ट्रस्टी हूं, आई एम हियर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माय डिबेंचर होल्डर, बट दिस कंपनी इज नॉट लिसनिंग टू मी, दे आर नॉट मेकिंग प्रॉपर रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल एंड द इंटरेस्ट विच इज बीइंग प्रॉमिस्ड। फिर बाद में एनसीएलटी जो एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारी चीजों को हैंडल करके वो डायरेक्शंस देंगे, और जब कोर्ट या कानून से जो फैसला आता है वो कंपलसरी हर किसी सिटीजन के ऊपर बाइंडिंग होता है। यस और नो? राइट? Debenture trustees have redressed the grievances of the debenture holders. If the company defaults in paying of the principal amount of the maturity or defaults in paying of the interest thereon, the debenture trustees can approach National Company Law Tribunal for redressal. NCLT can direct defaulting company to repay the principal amount of interest. जो grievances है, ये जो हम differences कहते हैं, जब दो पार्टियों में differences होते हैं, that is called as grievances. तो उसे रीएड्रेस करने का काम कौन करता है? NCLT. दोनों पक्ष सुनने के बाद अगर एनसीएलटी को लगता है कि हाँ भाई सचमुच में कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, तो एनसीएलटी डायरेक्शंस देगा कि कंपनी को भाई इतने दिन के अंदर इनका पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर नहीं करता है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई फिर एनसीएलटी अपने अपने हिसाब से करेगी। राइट? इंपोज रेस्ट्रिक्शंस। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव? इंपोज रेस्ट्रिक्शंस। जब कंपनी को लगता है कि कंपनी के कारोबार कुछ ऐसे चल रहे हैं कि कंपनी के कामकाज के ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया तो आने वाले दिन में पूरा की पूरा कंपनी सबको ले डूबेगी। तो उन्होंने एनसीएलटी को अप्रोच किया और बोला आप मैटर सुनो, उसके ऊपर जस्टिस दो, उसके लिए टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आज के डेट में इमीडिएटली एक्शन लो और कंपनी के कामकाज पे रोक लगाओ। अगर कंपनी के मैटर सुनते सुनते और 2-4 महीने देर हो गई और आपने इमीडिएट उनके कामकाज पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया तो जितना कुछ भी बचना है कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ डूब जाएगा। तो ऐसे केस में, इमरजेंसी सिचुएशन में, अगर एनसीएलटी को लगता है कि ट्रस्टी के रिक्वेस्ट पे कंपनी के ट्रांजैक्शंस के ऊपर इमीडिएट रेस्ट्रिक्शंस लाना है, एनसीएलटी का ऑर्डर निकाल सकता है। फ्रॉम इफेक्ट ऑफ टुडे द कंपनी इज ऑर्डर्ड टू स्टॉप ऑल इट्स ट्रांजैक्शन। और जैसे ही ऑर्डर निकल गया रिगार्डिंग इंपोजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, उसी दिन से कंपनी को अपना पूरा कामकाज ठप्प करके दे हैव टू वेट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी। एम आई ओके एंड क्लियर? When debenture trustees of the opinion that the assets of the company are insufficient or likely to be insufficient to redeem the principal amount of debentures, it may approach NCLT. It may approach NCLT. NCLT can order a company to restrict incurring further liabilities so as to protect the interest of the debenture holders. Right? NCLT can order a company to restrict incurring further liabilities so as to protect the interest of the debenture. जैसे मैंने कहा कि इमीडिएट उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए, एनसीएलटी में कार्रवाई होने को टाइम लगता है, उतना टाइमिंग में इन्होंने और ज्यादा लाइबिलिटी क्रिएट कर ली तो फिर जो पहले की लाइबिलिटी वही रीपे नहीं पाएंगे, और ज्यादा लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए इमीडिएट इंपोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एनसीएलटी करता है, लेकिन वो उनके ओपिनियन में उनको सही लगना चाहिए। अगर उन्हें सही लगा तो वो इंपोजिशन करते हैं, कंपल्सरी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनीज एक्ट। लास्ट पॉइंट, अगर कंपनी इन सभी प्रोविजंस का फॉलोअप नहीं करती है, एनसीएलटी का ऑर्डर नहीं मानती है, एनसीएलटी ने बोला 15 दिन में पैसे दे दो, पैसा नहीं देती है, तो बट ऑब्वियस इसमें क्या होगा? पनिशमेंट होगा। पनिशमेंट में फाइन भी होता है, फाइन के साथ साथ इम्प्रिजमेंट यानी जेल भी की जाती है उन ऑफिसर्स को जो कंपनी के साथ इस डिफॉल्ट में सहभागी है। हमें ओके एंड क्लियर? कंपनी के ऊपर फाइन लगाया जाता है और हर वो ऑफिसर जो डिफॉल्ट का सहभागी है उसे इम्प्रिजमेंट या जेल की जाती है। दिस इज punishment for contribution of the company provisions of the Companies Act 2013. If the company fails to comply with the provisions of the act, then the company and its officer shall be liable to pay fine or imprisonment or both as may be prescribed by act. कंपनी के
जो डायरेक्टर्स है या कंपनी है, कंपनी या कंपनी के डायरेक्टर को फाइन भी लगाया जा सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है, या दोनों भी करार दिया जा सकता है. अभी ओके एंड क्लियर? समझ में आए सारे 9 पॉइंट्स? एनी डाउट? अभी फाइन एंड ओके? नॉट ओके? नॉट ओके. अभी फाइन एंड ओके? ओके? नॉट फाइन एंड ओके? नॉट फाइन एंड ओके. So these are the provisions of Companies Act 2013 which are given in section number 71. So section number 71 lays down the different provisions of the Companies Act 2013. Are we okay and clear? Yes, thank you so much.